صفحے کے شروع سے لائن نمبر 3 سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها وإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون آخرین ان قریب تم پاؤ گے کچھ ایسے لوگوں کو یریدون جو ارادہ کرتے ہیں ان یأمنوکم یہ کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ اور جب کبھی انہیں بلایا جائے لٹایا جائے فتنے کی طرف أُرْكِسُوا فِيهَا تو اس کے اندر وہ جلدی سے داخل ہو جائیں گے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ بس اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہ کریں وَيَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکیں فَخُذُوهُمْ پھر تم انہیں پکڑو وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے ان پر سلطان مبینہ کھلم کھلا حملہ کھلم کھلا غلبہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کو بیان فرمایا حقوق العباد کو بیان فرمایا اور پھر حقوق العباد کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حقوق بھی بیان کیے کفار کے حقوق بھی بیان کیے حتیٰ کہ حیوانوں کے حقوق بھی بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ سے گزر رہے تھے تو ایک اونٹ بہت زیادہ بڑبڑا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا بار بار اور اپنی ٹانگیں مار رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ باتیں کی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके मालिक को बुलाओ, उसका मालिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इसका मालिक एक अंसार का रहने वाला है। उससे बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ऊँट ने तेरी 3 शिकायतें की हैं, तो इसे वक्त पर पानी नहीं पिलाता, उसे खाना कम देता है और उसके ऊपर बोझ ज़्यादा डालता है और उसे दूध के अंदर बांधे रखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू फी हादिहिल बहाइम, कि इन जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तुम पर पकड़ आ सकती है। फरिश्ता सुबह शाम इनसे पूछता है कि तेरा मालिक तेरे साथ कैसा सलूक कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हैवानों के हुकूक बयान फरमाए। इस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे थे तो एक आदमी ने चिड़ियों का घोंसला था, उसमें बहुत खूबसूरत बच्चे थे जिनके अभी पार निकले थे लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे। उसने बच्चों को उठाया, अपनी गोद के अंदर डालकर वो ले जा रहा था और वो काफिले के साथ साथ चल रहा था। तो एक चिड़िया उसके सर के ऊपर फड़फड़ा रही थी। आप ने पूछा कि ये चिड़िया ऐसे क्यों कर रही है? उसने कहा या रसूलल्लाह, मैंने इसके बच्चे उठा लिए हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगे। तो आप ने फरमाया क्या कोई तेरे बच्चों को उठाकर ले जाइए तो ये अच्छा लगेगा? मैं या रसूलल्लाह, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तकलीफ होगी। फरमाया इस तरह चिड़िया को भी तकलीफ हो रही है, इसके बच्चों को आपने जहाँ से उठाया वहीं जाकर रख के लाओ। तो आप ने फरमाया कि जिस तरह मुसलमानों के हुकूक बयान फरमाए, कुफार के हुकूक बयान फरमाए, हैवानों के हुकूक बयान फरमाए, इस आयत के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुफार हैं तुम्हारे साथ जैसा सलूक करते हैं तुम उनके साथ वैसा ही सलूक करो। फरमाया अगर वो तुम्हारे साथ बज़ाहिर अच्छा सलूक करते हैं और उनके बज़ाहिर ज़ाहिर को देखकर ज़ाहिर के तुम फैसला करोगे, फरमाया तुम्हें उनकी तरफ से नुकसान पहुंच सकता है। उस दौर के अंदर 2 कबीले थे, एक कबीला बनु गतफान और एक कबीला था। जो दोनों कबीले आप सल्लल्लाहु के पास आते तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते और मुसलमानों को ये ज़ाहिर करते तो हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो हर वक्त आपके साथ हैं, हम अपनी कौम के साथ नहीं हैं बल्कि हम इस्लाम कबूल कर लिया है, अब हम मुसलमानों का साथ ही देंगे। लेकिन जब मुसलमानों के पास उठकर चले जाते तो अपनी कौम के पास जाते, कौम के पास जाकर कहते हम तो वैसे उनके पास बैठे थे और जब आप हमला करोगे तो हम आपके साथ ही, हमारे दिल आपके साथ ही हैं। यानी दोगली पुलिसी दोनों तरफ बातें करते, दोनों तरफ से अपने आप को, दोनों ग्रोहों को मुतमिन रखते और दरमियान से अपना मतलब निकालते रहते, मुसलमानों से बचते रहते और अपनी कौम से बचते रहते। तो अल्लाह रब्बुल फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो इरादा करते हैं अय्यमनुकुम, कि वो तुमसे भी अमन में रहें, अपनी कौम से भी अमन में रहें। फरमाया लेकिन हकीकत के अंदर क्या है, उनके दिल अपनी कौम के साथ ही हैं, अपने दिल जो कुफार के साथ ही हैं। फरमाया जब कभी उन्हें बुलाया जाएगा रुद्दू इलल फितना, यानी शरारतों की तरफ, फितने की तरफ, फरमाया वो तुम्हारी सारी सीआईडी लेकर जासूसी करते हैं और जाकर अपनी कौम को बताते हैं। और फरमाया अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो फरमाया जब कभी वो इन लोगों को बुलाएंगे, फरमाया सबसे पहले ये आप जंग के अंदर शामिल होने वाले यही लोग होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइल्लम याताज़िलुकुम, अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार न करें, इस काम से बात ना आए, वयुल्कू इलैकुम सलामा, और फरमाया तुम्हारी तरफ सुलह की पेशकश न करें, यानी तुम्हारे साथ सुलह करने के लिए तैयार ना हो, और वकुफू ऐदियकुम, और फरमाया अपने हाथों को भी ना रोकें। तुम्हें पता नहीं चल रहा, बज़ाहिर कलमा भी पढ़ते हैं, बज़ाहिर साथ भी हैं और लेकिन अंदर अंदर से मुखालफत भी करते हैं, मुसलमानों के अकायद के बारे में बातें करते हैं, बाहर जाते हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करते हैं, यहाँ से उठकर जाते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं, ये खराबियाँ हैं, ये खराबियाँ हैं, और लेकिन जब आपके पास बैठते हैं तो बड़ा मोहब्बत का इजहार करते हैं, दावा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोगों को फखुदूहुम, फरमाया इन लोगों को तुम जहाँ कहीं भी पाओ इनको कत्ल कर दो। फरमाया इनके लिए जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं है। फरमाया इस्लाम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, लेकिन फरमाया अगर वो तुम्हारे से हाथ रोकने के लिए तैयार नहीं, तुम्हें कत्ल करने के लिए तैयार है, हर वक्त तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, फरमाया ऐसे लोग, फरमाया जो मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, फरमाया ये तो ऐसा फितना है जिसे काटना बहुत जरूरी है। फरमाया जहन्नम का सबसे जो निचला तबका उसके अंदर मुनाफिकीन को डाला जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि इनको जहाँ कहीं भी पाओ इनको कत्ल कर दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इनके ऊपर खुला गलबा अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गलबे का वादा किया है, तो इसलिए फरमाया इन लोगों के बारे में हरगिज़ रज्जक ना दिखाओ। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया था जो ज़ाहिर अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे लेकिन हकीकत के अंदर वो मुसलमान नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई ऐसा आदमी आपको मिलता है जो बज़ाहिर आपके साथ है, बातों के अंदर आपके साथ है लेकिन हकीकत के अंदर आपके साथ नहीं है, फिर आपको उसका साथ छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसकी वजह से फिर आपको किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़े। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।